I share my screen to you all. Okay. So in previous lecture we studied about the sign number representation. Okay. So what is meant by sign number? If you give any sign to a number, that means a plus sign and negative sign, then it is called the sign number. Okay, there are three way of sign representation. First one is the sign magnitude, one's complement, and second two's complement. Okay, so for a sign magnitude representation, there are for MSB bit is reserved for the sign bit. That means the 0 is used for the positive number and 1 is used for the negative number. And other bits are represent the magnitude. That means the value of its number. Then okay, after that we see the ones complement. When we convert any number into reverse form, that means complement form, it is called the ones complement. That means if convert 1 into 0 and 0 into 1, then it becomes the ones complement. Then two's complement, if you add 1 in one's complement, then it becomes the two's complement representation. Okay, so these all about the sign representation. So today's topic is minimization of SOP and POS using K-map. Okay, so already we studied about the SOP form and POS form. We already solved many example of POS and SOP using K-map, but still we again revise POS and SOP form. Okay, so again SOP of product. So logic, so what is meant by SOP? Anyone? Anyone can tell me please what is meant by SOP? Can you hear me? Team play? I am audible to you all now. Anyone? Yes, ma'am. I already teach you about the sum of product, product of sum. Have you remember this thing? Yes, ma'am. Okay. We fastly revise again these all things SOP and POS. Okay. So please, anyone having doubt, please ask me. So for sum of product, so what is the use of this term sum of product and product of sum? This is nothing but the representation of the logical expression. So logic statement, truth table, SOP form, POS form, they are used to simplify the logical functions. Okay, so here we use the SOP and POS form for solve the K-map. Okay, so possible way. So what is the use of SOP? So SOP is nothing but the sum of product. So this is the SOP term. Please see my cursor. Just a minute. So here A bar B bar. So A bar B bar ending. So it nothing but the product. This first term A B bar, this is product. A B bar, this is product. A B bar, this product. अगर ये टर्म को अगर हम कंबाइन करते तो वो किससे करेंगे? और से करेंगे. सो एंड फंक्शन और टुगेदर. सो इट इज कॉल्ड द SOP एक्सप्रेशन. ओके, सो एंडिंग के जो भी टर्म्स है वो कॉम्प्लीमेंट भी है या कोई अनकॉम्प्लीमेंट भी टर्म है. अगर आपको ट्रुथ टेबल के इसमें अगर वो देखना है, सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 इज नथिंग बट द रिप्रेजेंट यूजिंग द बार. सो कॉम्प्लीमेंट. सो चेक करो यहाँ पर ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार. सो कोई बोल सकता है मुझे लास्ट का ये क्या आएगा? ए बी. ओके, सो नेक्स्ट, अगर 3 बिट का वेरिएबल ट्रुथ टेबल है तो यहाँ पर कैसे आएगा? ए बी बार सी बार. ओके, सो ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर मुझे क्या करना है, अगर इसका ट्रुथ टेबल लेना है, इसका एक्सप्रेशन अगर लेना है, तो जहां पर भी 1 है
उसी का एक्सप्रेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हमेशा सॉफ्ट फॉर्म के लिए 1 ही कंसीडर करना है। सो यहाँ पर अगर आप आउटपुट में अगर चेक कर सकते हो तो 1 कहाँ पर है, इस टर्म के लिए 1 है, इस टर्म के लिए 1 है, इस टर्म के लिए 1 है, इस टर्म के लिए। सो उसी के एक्सप्रेशन हमें लेने हैं। सो इसका एक्सप्रेशन है ए बी बार सी, ए बार बी सी, देन ए बी बार सी। लाइकवाइज ऐसा एक्सप्रेशन लिखने हैं, ये आपको पता है कैसे लिखने हैं, ठीक है। सो ये टर्म्स को टुगेदर करना, एक साथ लेना है, और इसके बाद कैसे एक्सप्रेशन आएगा फाइनली। सो ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, अगेन वे ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। सो सॉल्व करने के लिए इस वे से भी गिवन क्वेश्चन में हो सकता है, या इस वे से भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हो सकता है। सो ए बार बी सी, सो इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या है, ये 0 1 1, दैट मीन्स दी डेसिमल में वो नंबर आता है 3। देन ए बार सी, वो नंबर आता है 5, ये नंबर आता है 6, और ये नंबर आता है 7। इस स्लाइड में किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत बेसिक है। सो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा तो मैं आगे जा सकती हूँ। सो एनीवन अगर डाउट है तो प्लीज पूछो। ओके, सो नेक्स्ट अगेन सम प्रोडक्ट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते, ये समेशन का सिंबल यूज करते, ठीक है। सो दीज आर द एबीसी आर वेरिएबल, वाई इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन फॉर आउटपुट वेरिएबल, ओके। सो अगेन अगर इसकी लॉजिक डायग्राम है ये प्रीवियस, इसकी अगर लॉजिक डायग्राम अगर ड्रॉ करनी है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस वे से ए बार बी सी, ए बी बार बी सी, और बाद में कंबाइन किसको करना है, और गेट को, ठीक है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ प्रोडक्ट के एग्जांपल देखो। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन इन सम ऑफ प्रोडक्ट एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। समेशन ऑफ मीन टर्म, स्मॉल एम यूज करते सॉफ्ट फॉर्म के लिए, 0 1 2 5 8 9 एंड 10। सो इसके लिए के मैप कितने वेरिएबल का के मैप आएगा, 4 वेरिएबल का, ठीक है। सो 16 बॉक्सेस आएंगे। सो 16 बॉक्सेस में 0 1 2 5 8 9 के लिए हम क्या एंटर करेंगे, 1, ओके। और उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग। सो यहाँ पर कितना ग्रुप है, ये ग्रुप सेकंड पेयर आ रही है, और बाद में जो भी 4 4 है इनका 1 एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है। सो इसको अगर ये भी एक ग्रुप आएगा, ये 4 का एक ग्रुप आ सकता है, ये 2 से बनाने से बेटर क्या रहेगा, हम इसका 4 का ग्रुप बनाते, ठीक है। सो ये फाइनल आपका के मैप है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या आएगा इसका आंसर, फर्स्ट पेयर का आंसर क्या आएगा, कौन बताएगा। जहां पर भी मेरा कर्सर है, ये 1 1 और ये 1 1 के लिए, ये 4 1 के लिए क्या आंसर आएगा, यहाँ पर आंसर है, आप बोलो अभी कौन सा है, इसमें से टर्म कौन सी है। Have you understand what is mean by K-map, what is mean by sum of product? मैम एक्स बार जेड बार डब्ल्यू, किसके लिए, इसके लिए 1 1 और 1 1, ये 4 ग्रुप, 4 के लिए कैसा ये आएगा, 4 ग्रुपिंग के लिए वाई बार एंड डब्ल्यू बार में। ओके, एक मिनट याद रखो, 4 वेरिएबल, सॉरी 4 1 का अगर ग्रुपिंग करते हैं तो उसका जो आंसर है हमेशा 2 वेरिएबल में आता है। सो अब यहाँ पर अगेन चेक करो, मैं कौन सा बोल रही हूँ, ये देखो मेरा कर्सर, प्लीज चेक करो, वाई बार जेड बार 1 1 1 1। अब यहाँ पर अगर चेक करते हैं तो कौन सा कॉमन है, वाई बार, ओके। और इसके ऊपर कौन सा कॉमन है, जेड बार, सो वाई बार जेड बार, जेड। ओके गुड। देन नेक्स्ट, ये जो भी कॉर्नर के 1 1 है इसका क्या आंसर आएगा, कॉर्नर 1 1, कॉर्नर 1 1 के लिए क्या आंसर आएगा, उसका 4 का ग्रुपिंग बन रहा है, मतलब कॉर्ड बन रहे हैं, सो उसके लिए क्या आंसर आएगा, वाई बार डब्ल्यू बार, वाई बार डब्ल्यू बार, गुड। एंड देन इस पेयर के लिए एक्स बार जेड बार डब्ल्यू, ओके गुड। सो गुड, अच्छा है आपको समझ में है। सो सम ऑफ प्रोडक्ट का ऐसा एक एग्जांपल, ये ऑलरेडी आपने सॉल्व किया, अगेन मैं एक बार इसको रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। देन डोंट केयर कंडीशन आपको पता है, ठीक है।
given the truth table, draw a Karnaugh map with the zeros, ones and don't care. ठीक है, so K map हमेशा 0, 1 and don't care इतनी टर्म्स होती हैं. So हम जनरली क्या करते हैं K map में, सॉफ्ट फॉर्म के लिए 1 का ग्रुप बनाते, पॉज फॉर्म के लिए 0 का ग्रुप बनाते. ठीक है, लेकिन हमें जनरली K map सिंप्लीफाई कब ज्यादा मिलता है, जब हम ज्यादा से ज्यादा 1 का या 0 का ग्रुप करते. ठीक है, सो वो ग्रुप करने के लिए हम डोंट केयर का यूज कर सकते. ठीक है, so after the actual ones have been included in group, discard the remaining don't cares by visualize them as a zeros. ठीक है, so ज्यादातर हम डोंट केयर को एज अ सपोर्टिंग यूज करते हैं, हम डोंट केयर का होल डोंट केयर का ग्रुप नहीं बनाते. सो यहाँ पर एक एग्जांपल है, give the simplest logic circuit for the logic functions where the D represent the don't care condition for the following location. So function A, B, C, D, these are the 4 variables, summation of mean term. So 7 का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर, कोई बता सकता है? यहाँ पर 7 है, मतलब क्या करना है मुझे K मैप में? Anyone? 7 पोजीशन पे 1 लिखना है. ओके गुड. अगेन डी है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डी 10, 11, 12, 13, 14, इसके प्लेस पर क्या लिखना है हमें? डोंट केयर. और अदर प्लेस पर क्या आएगा? हो ओके, अदर प्लेस पर क्या आएगा? अदर प्लेस पर क्या कंसीडर करना है हमें? 0. ओके, सो हमने 0 प्लेस किया. सो हमें क्या करना है? इस स्कीम आपको सॉल्व करना है. सो हम क्या करेंगे? इसकी ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग के लिए अगर आप चेक करते हो तो हमें कॉन्सेंट्रेट 1 के लिए करना है, और 1 को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग के लिए डोंट केयर करना है. अब अगर यहाँ पर डोंट केयर नहीं होता तो हम क्या करते? सिंगल 1 का ग्रुप बनाते. ठीक है, सो बेटर अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमें डोंट केयर है तो हम डोंट केयर को सपोर्टिंग के लिए यूज करेंगे और पेयर बनाएंगे, मतलब 1 से ज्यादा 2 का ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? बी एंड सी डी. BCD. राइट, सो बी सी डी आंसर आया. और इसको क्या किया हमने? इसका एक लॉजिक सर्किट बनाया. सो जो भी आंसर है, ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इसका सर्किट बनाना है. तो सर्किट कैसे बनाना है? पहले इक्वेशन, पहले के मैप बनाओ. के मैप में इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई मिलेंगे, और वो जो भी सिंप्लीफाई इक्वेशन उसका क्या बनाना? आपको सर्किट बनाना है. सो इसका आंसर ए बी सी डी आया, तो ए बी आंसर आया बी सी डी. सो बी सी डी अभी एंडिंग था वहां पर, सो एंड यहाँ पर कनेक्ट किया. सो दिस इज द लॉजिक सर्किट फॉर गिवन एग्जाम्पल. ओके, सो नेक्स्ट है पॉज. सो प्रोडक्ट ऑफ सम. सो इसमें क्या यूज होता है? आर का एंडिंग करते हैं हम, राइट, और के मैप में 0 का ग्रुपिंग करते हैं. सो यहाँ पर अगर एक ट्रूथ टेबल है, सो ट्रूथ टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सो पहले भी मैंने बताया था कि 0 के लिए यहाँ पर बार नहीं देते, 1 के लिए बार देते. किसमें? पॉज में. सो ए प्लस बी प्लस सी. ओके, देन 1. अब यहाँ पर पूरे रिवर्स ऑपरेशन करना है पॉज से. सो पॉज में क्या करते हैं हम? 0 के लिए ही कंसीडर करना है. सो ए प्लस बी सी. 1 के लिए नहीं कंसीडर करना है. 0 के लिए ए प्लस बी बार प्लस सी बार, देन 0 के लिए ए बार प्लस बी बार सी. जहां पर 1 था उस टर्म को अभी हमने कंसीडर नहीं किया. ये वो आउटपुट है, हम आउटपुट के लिए यहाँ पर चेक करें कि कैसे मैक्स टर्म लिखने. सो इसके लिए मैक्स टर्म आएगी m0, इसके लिए मैक्स टर्म आएगी m3, इसके लिए मैक्स टर्म आएगी m6. सो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो 0 0 0. अब यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 के लिए बार लिखते हैं. ठीक है, और यहाँ पर कैसे लिखेंगे? 0 3 6. मतलब हम कितने वे से ये पॉज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दिस इज फर्स्ट वे, समेशन पाई कैपिटल M 0 3 6. देन यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, यूजिंग दिस ट्रूथ टेबल, ये सब वे से हम क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट फॉर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं. यहाँ पर किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ओके, सो लॉजिक सर्किट फॉर प्रीवियस एग्जांपल. तो होप किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. ये एग्जांपल है, यहाँ पर ऑरिंग है, ऑरिंग को बाद में क्या करते हैं? एंडिंग करते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ. मैम बोलो. मैम पीछे वाले पेज पे एक बार. बोलो. मैम ये
y इज इक्वल टू, ये कैसा है? अब दिखाओ ना मुझे, मतलब वो पहले 3 स्टेप समझे, बाद में के 2 स्टेप। कर्सर पर कंसंट्रेट करो। ये समझ में आया आपको? ऐसा आपको बोलना है ना या नहीं? हाँ मैम, समझ में ये आया। ओके, ये समझ में है ना? तो बस बाद में क्या किया, ये टर्म यहाँ पर लिखी है एबीसी। सो एबीसी का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 0 0। ओके, देन नेक्स्ट टर्म क्या है? ए प्लस बी बार प्लस सी बार। सो ए प्लस बी बार सी। सो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है? 0 1 1। ओके, यही पूछ रहे हो ना आप लोग? ये नहीं मैम, वो पहली 3 स्टेप है ना, y इज इक्वल टू ए, वो जो ये 3 वाला, स्टेप है वो आ रहे हैं, बाद में के 2 स्टेप। ये नहीं मैम, ये नीचे लिखा हुआ है ना, वो 3 स्टेप है ना, वो उसके नीचे के 2 स्टेप। ये हाँ मैम, वो स्टेप, वो अरे वो कुछ नहीं। स्टेप और उसके आगे वाली एक स्टेप। हाँ ओके, ये ना कंबाइन किया है। ये क्या है, सेपरेट सेपरेट था ना, तो हम क्या करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो हम इसने कंबाइन किया। अभी ये पूरा पॉज का एग्जाम एक्सप्रेशन बनाना है, तो क्या किया हमने, y इज इक्वल टू ये टर्म प्लस ये टर्म प्लस ये टर्म। सो अब पूरी प्रोडक्ट ऑफ सम बनी है। अभी यहाँ पर क्या थी, सिर्फ सम 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 थी ना, बाद में इसको प्रोडक्ट किया। सो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है। ये एक एक पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। ये तीनों पार्ट को एक साथ कंबाइन किया और फिर y इज इक्वल टू ये लिखा। अब ये फर्स्ट वे है एक एक्सप्रेशन करने का, ये ठीक है, ये लॉजिकल एक्सप्रेशन का फर्स्ट वे। सेकंड वे, ये ही एक्सप्रेशन हम इस वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ए बी सी मतलब 0। सो राइट डाउन 0। ए प्लस बी बार सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, सो इज नथिंग बट द 3। एंड a बार प्लस b बार प्लस c, a बार प्लस b बार इज नथिंग बट द 6। सो ऐसे लिखना है। ये मैंने क्यों यस रिपीट मैम, किया, समझ गया। क्योंकि लास्ट टाइम जब भी मैंने सेपरेट सेपरेट पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ सम, ट्रूथ टेबल अलग, तो ये स्लाइड में मैंने एक साथ पढ़ाया। ठीक है, सो एनीवन, किसी को कुछ डाउट है? नहीं, ओके। सो यहाँ पर ये फर्स्ट यूनिट था, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप से हमने 4 वेरिएबल के मैप लिया और हमने वो सॉल्व भी किया है। क्वाइन मैक्लसन की मेथड भी यूज करके हमने बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया है। देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन नंबर को भी हमने साइन रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट सेकंड कॉम्प्लीमेंट, ये भी सॉल्व किया है। देन प्रोडक्ट ऑफ सम ये भी किया। मिनिमाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पॉस ये भी अगेन मैंने फर्स्ट 1-2 लेक्चर में ये सॉल्व किए थे, मिनिमाइजेशन ऑफ सॉफ्ट एंड पॉस यूजिंग के मैप। ठीक है, सो यहाँ पर रेफरेंस बुक है, अगर कोई टॉपिक अगर कोई रेफरेंस बुक से चाहिए तो ये यहाँ पर है। इसका फर्स्ट जो भी डिजिटल मॉडर्न डिजिटल, ये मैंने इसकी लिंक ऑलरेडी स्लाइड पर दी है, या मेरे ब्लॉग पर भी ये बुक है। ठीक है, सो यहाँ पर सिर्फ अभी इस यूनिट का जो भी एक केस स्टडी बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में या फ्राइडे के लेक्चर में ले लूंगी। ठीक है, इसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपका 120 का जो भी ओपी का लेक्चर है वो मैं लेने वाली हूँ डीएलडी का। ठीक है, और कल का लेक्चर ब्रह्मेचा सर लेंगे। उस लेक्चर की लिंक मैं ग्रुप पर शेयर करूंगी। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट एंड है। ठीक है, सिर्फ एक केस स्टडी है। केस स्टडी कैसी करनी ये मुझे चेक करना है, आपको प्रैक्टिकली बताना है या सिर्फ थ्योरी बतानी है, इसके ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। सो ये यूनिट एंड हुआ है। सो किसी को कुछ डाउट है? इतने टॉपिक्स थे। मैम ये लास्ट वाली पीपीटी। पीपीटी शेयर करना है इससे बोल रहे हैं आप? यस मैम। हाँ, ऑलरेडी ये जो भी पीपीटी अगेन मैंने कंबाइन की, फर्स्ट यूनिट की पूरी पीपीटी कंबाइन है। सो अगेन मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो किसी को कुछ डाउट है कि मैं आप अगेन कुछ इसके एग्जाम्पल लेने हैं सॉल्व करने के लिए, ऐसा कुछ होगा तो बोलो। आपने ये एग्जाम्पल सॉल्व किए होंगे, ये मैंने फॉर एग्जाम्पल दिए थे। ये इसका सॉल्यूशन भी मैंने क्लासरूम में ये किया, अपलोड किया यस है। मैम। ओके, सो के में अपने किसी को कुछ डाउट है, मैं अगेन एक एक स्लाइड बता देती हूँ आपको, तो किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज बोलो। सो रेफरेंस बुक आरपीजीएन ये बुक के ही एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व करो।
सो बाइनरी नंबर आप लिख सकते हो, ट्रूथ टेबल भी आप लिख सकते हो, लॉजिकल वेरिएबल आपको पता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको पता है, ठीक है। ये सम ऑफ प्रोडक्ट ये अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया है। सो इस वे भी में मैंने रिप्रेजेंट किया है। सो स्टैंडर्ड पॉज एंड पॉज फॉर्म में क्या डिफरेंस है, कोई बोल सकता है मुझे? स्टैंडर्ड सॉफ्ट फॉर्म एंड ओनली सॉफ्ट फॉर्म, इसमें कुछ डिफरेंस है या नहीं? एनीवन? ओके, सो ये क्या है? ये स्टैंडर्ड पॉज फॉर्म है। एंड ये क्या है? यहाँ पर अगर देखते हैं ये सिंपल सॉप है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं। क्यों स्टैंडर्ड नहीं? क्योंकि इसमें सी एब्सेंट है। हाँ राइट, सो इसमें सी एब्सेंट है। सो जितने वेरिएबल्स है वो सब वेरिएबल हर टर्म में प्रेजेंट है, सो वो क्या बनेगी आपकी स्टैंडर्ड टर्म। सो स्टैंडर्ड टर्म को ही कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म या पॉज फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। एक तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉफ्ट एंड पॉज फॉर्म, या इसको बोलते हैं कैनोनिकल सॉफ्ट एंड पॉज फॉर्म, ठीक है। सो कोई एग्जांपल है, अगर आपको लगता है ऐसा आप सॉल्व करके दिखाओ तो भी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। क्योंकि आज पेन और ये पेजेस है और कैमरा भी है, सो ये भी एग्जांपल में लाइव आपको सॉल्व करके दिखा सकती हूँ। कौन सा भी एग्जांपल अगर सॉल्व करना है तो आप बोल दो, ठीक है। मैं एक एक स्लाइड ले रही हूँ, कौन से भी स्लाइड में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज बोलो। कोई एग्जांपल सॉल्व करना है या गेम आप क्या यही अभी तक नहीं समझ में है तो एक 5 मिनट है, आज टाइम है और 10 मिनट है, सो वो भी मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट यूनिट भी स्टार्ट कर सकती हूँ। सेकंड यूनिट है जो कि बाइनरी कोड ग्रे कोड के ऊपर डिपेंड है। फाइंड मार्क क्लास की मेथड में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलो। ओके, सो किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है? ग्रुपिंग कैसी करनी, ग्रुपिंग के कुछ रूल है क्या, या इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा तो प्लीज पूछो। नहीं होगा तो प्रैक्टिकल में किसी को कुछ प्रॉब्लम अभी तो मैम ग्रुपिंग एक बार एक्सप्लेन करो। ओके, सबको यही कॉमन प्रॉब्लम ऐसा मैं कंसीडर करूं? और एक दो प्लीज यस बोलो अगर के मैप के ग्रुपिंग में ही प्रॉब्लम अगर होगा तो प्लीज एक दो स्टूडेंट का एटलीस्ट मुझे ओपिनियन चाहिए। आप यस बोलो तो कंसीडर करूंगी। हाँ यस मैम, एक बार रिपीट कर दो। यस मैम। ओके गुड, नहीं तो ऐसा अगर है तो फिर मैं उसी को एक्सप्लेन कर दूंगी बाद में। ओके, जस्ट अ मिनट। मैम आपकी वॉइस क्लियर आ रही है? अब आ रही है? आ रही मैम। क्लियर है मैम, क्लियर है मैम। ओके, एक मिनट। कैमरा दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? एक पेज। यस मैम। ओके यस मैम। ओके, सो अगर मैं 2 वेरिएबल का के मैप अगर करती हूँ, अगर प्लीज किसी को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज बोलो। 2 वेरिएबल अगर के मैप है, सो हम मैम थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको नीचे तो नहीं ले सकती, अब देखो तो। यस मैम। ओके, सो यहाँ पर जनरली मैपिंग में के मैप में वैल्यू पुट करना बहुत इजी है। के मैप में स्ट्रक्चर भी हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो भी प्रॉब्लम वो किसका आता है? ग्रुपिंग का। सो ग्रुपिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? हम क्या करते हैं? 2 1 का ग्रुप करते हैं। सो
इसको क्या बोलते हैं? पेयर। 4 1 का ग्रुप करते इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और 8 1 का ग्रुप करते इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट। ठीक है। सो ये यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर अगर मैं पेयर करती हूँ तो इसका क्या आएगा आंसर? आपको क्या देखना, इसके दोनों साइड में देखना, टॉप में एंड साइड में। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा इस ग्रुपिंग के लिए? ए बार, राइट। अब यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ ए बार। क्यों ए बार आएगा? क्योंकि ऊपर के दोनों भी टर्म इसके लिए क्या है? डिफरेंट है, इसमें कुछ कॉमन भी नहीं आएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा? इसके में आपके लिए आंसर आएगा ए बार। सो y इज इक्वल टू ए बार। ठीक है। अब 4 वेरिएबल का के मैप लेते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैं प्लेन पेपर लेती हूँ। सपोज आपका एग्जांपल है ए बी सी डी समेशन ऑफ मिन टर्म 0 3 6 8 11 एंड 15 और इसमें डोंट केयर लिखा है सपोज 7। ओके। ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0। ठीक है। यहाँ पर क्या देने? हमें लेबलिंग देने। सो इजी जाएगा। 0 1 2 3 4 5 विजिबल है प्लीज। अगर विजिबल नहीं होगा तो प्लीज कोई भी बोलो विजिबल नहीं ऐसा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sorry 13 14 and 15। okay, so ये जीरो जो भी है जीरो के प्लेस पर मैम क्या है? ब्लर दिख रहा है बहुत ब्लर दिखाई दे रहा है। नो मैम दिखाई दे रहा है। ओके। 0 के प्लेस पर 1, 3 के प्लेस पर 1, 6 के प्लेस पर 1, 8 के प्लेस पर 1, 11 के प्लेस पर 1, 15 के प्लेस पर 1। ठीक है। सो 1 2 3 5 6 7 7 1 2 3 5 6। सो 7 प्लेस पर 1 आया है और कोई तो एक मिसिंग है। 11 15 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, 6 हुआ, देन 8 हुआ, देन 11 हुआ, 0 3 6 8। मैम 7 8 की पोजीशन इंटरचेंज हो। हाँ ओके। 0 1 2 3 4 5 6 7 ने बराबर 8 9 10 11। ओके। क्या बोल रहे हैं आप? इंटरचेंज नहीं हुए। यहाँ पर लेबल है ना ऐसा 0 0 0 1 1 1 ग्रे कोड है। आप लगे तो लेबलिंग चेक करो। 0 के लिए दिया, 3 के लिए दिया, 6 8। ओके। सो अब क्या करेंगे? हम ग्रुपिंग करेंगे। बाकी के प्लेस पर क्या लिखना है हमें? 0। सो ग्रुपिंग कैसे आएगी इस केस में? ये देखो ये ग्रुप बनेगा एक। ठीक है। सो इसके लिए क्या आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा? सी डी। ओके, क्योंकि 4 का बन रहा है। देन अब यहां पर एक क्या बनेगी? पेयर। सो इसके लिए क्या आंसर आएगा? इसके लिए क्या आंसर आएगा? इसके साइड में अगर देती हूँ तो बी बार सी डी। बी बार सी बार डी। ओके। एंड नेक्स्ट और क्या पेंडिंग है? ये 1। अब इसका सिर्फ क्या बनेगा? पेयर ही बनेगी, कॉर्ड नहीं है पॉसिबल। सो इसके लिए क्या आंसर आएगा? ए बार बी और डी। ओके। सो फाइनली आंसर क्या है आपका? y इज इक्वल टू बी बार सी डी प्लस वहां पे सी आएगा। कहाँ पर? ए बार बी सी। ए बार ए बार बी
और यहाँ पर कॉमन क्या निकल रहा है? सी, सॉरी। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। और कौन सी ग्रुपिंग करनी बोल सकते हैं आप? 4-1 का चाहिए, 2-1 का चाहिए? कौन से एक्सप्रेशन में अगर प्रॉब्लम है तो ऐसे बोलिए, या कोई स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आपके पास है तो वो भी आप बोल सकते हैं। मैम वो थर्ड मेथड है ना? कौन कौन सी थर्ड मेथड? दैट मीन्स Coin math method, ma'am. फिर से बोलो। मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पर अगर एक काम करते, ये पॉज का एक्सप्रेशन करते, ठीक है। 0 0 0 0 1 1 0 1 डोंट केयर 0। मैंने ऐसे ही एक्सप्रेशन लिया है, सॉरी ऐसे एक्सप्रेशन लेकर ये केम आपने ग्रुपिंग की है। सो यहाँ पर कैसे ग्रुपिंग आएगी? 0 का ग्रुप बनाना है यहाँ पर। सो कैसे आएगा? ये एक ग्रुप बनेगा, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा? A प्लस B। ओके, देन और क्या एक्सप्रेशन आएगा? अगेन ये 4 0 का ग्रुप बनेगा। सो इसके लिए क्या आंसर आएगा? B प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा? D बार। ओके, देन अगेन ये 4 0 का ग्रुप बनेगा। सो इसके लिए क्या आंसर आएगा? B बार प्लस यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? C। ओके, देन और क्या पेंडिंग है? ये 0 पेंडिंग को 0 पर कॉन्सेंट्रेट करना है हमें। सो ये क्या आएगा? पेयर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा? B बार प्लस C बार प्लस D। सो कंबाइंडली इक्वेशन क्या आएगा? y इज इक्वल टू B बार प्लस C प्लस B प्लस D बार A प्लस B बार प्लस C बार प्लस D। मैम वो जो 4 0 की ग्रुपिंग की है, वहाँ पर ए आएगा। सेकेंड B प्लस D बार, वहाँ पे A प्लस D बार आएगा ना? पेयर की है। ये क्या मेरा पेन दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या ये बोल रहे हैं आप? नहीं मैम, नहीं मैम, वो वाली नहीं, वो ये वाला? सेकेंड, फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड पोजीशन वाला, उसके ऊपर वाला। ये वाला ना? यही वाला? हाँ हाँ, वो वाला। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? ए आएगा, सॉरी डी बार आएगा। हाँ ए आएगा इसके लिए। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? सॉरी, ए आएगा यहाँ पर। ए प्लस ऊपर क्या है यहाँ पर? डी। ए आएगा, राइट है? डी बार। 1 है क्या? ओके, सो डी बार आएगा। सो समझ में आया आपको कैसे ग्रुपिंग करनी है? और 4 मिनट रिमेनिंग है। कुछ डाउट होगा? अगेन कोई एग्जांपल सॉल्व करना है तो आप बोलो। डायगोनली ग्रुप नहीं करने हैं, और आपको पॉज का ग्रुपिंग करना है या सब का ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसके लिए भी कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अब किसके बारे में, कौन से टॉपिक में डाउट है आपको? बाइनरी टू ग्रे में प्रॉब्लम है, या बाइनरी नंबर ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें प्रॉब्लम है, व्हाट इज मीन बाय डेसिमल नंबर इसमें प्रॉब्लम है। मैम थर्ड मेथड है ना क्वाइन मैक्सलिस की, हाँ, वहाँ पे वो मिन टर्म का ग्रुपिंग कैसे बनता है वो बताओ। ओके, सपोज समेशन ऑफ मिन टर्म 0 1 3 6, ये अगर मुझे क्वाइन मैक्सलिस से मेथड करना है तो हमें क्या करना है? पहले 0 1 3 6 का हम क्या करते हैं? पहले इसके नंबर्स लिखते हैं, राइट। ये फर्स्ट, सो ये हमने सिर्फ इनिशियली बाइनरी नंबर। अब क्या करना है मुझे? नंबर ऑफ 1 का ग्रुप करना है। सो फर्स्ट ग्रुप आएगा, ठीक है। यहाँ पर मीन टर्म आएगी और यहाँ पर बाइनरी नंबर आएंगे ए बी सी डी। सो यहाँ पर ग्रुप 0 में क्या आएगा? कौन सी मीन टर्म में क्या है? नंबर ऑफ 0, यहाँ पर 0 ही है।
सो m0 0 0 0 ये ग्रुप है। अभी नंबर ऑफ वन एक ही इसमें है, सो नंबर ऑफ वन, नंबर ऑफ टू और नंबर ऑफ 6। इसमें क्या है, नंबर ऑफ 2 है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड, फर्स्ट स्टेप है कि जिसमें नंबर ऑफ वन से हम क्या करते हैं, ग्रुप। हाँ बोलो। वो 2 और 6 क्यों लिया 2 में? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वन दो ही है ना, ये देखो m2 में कितने नंबर ऑफ वन है, 2, 1 and 2। यहाँ पर कितने हैं, 1 and 2। अगर और यहाँ पर होता, और किस में m1 and 2 आते हैं, 2 6 5 में आता है ना। सपोज यहाँ पर 5 होता तो हम क्या लिखते हैं, 0 1 0, राइट। सो 5 भी यहाँ पर आता। ओके ओके मैम, ओके मैम। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? बाइनरी का एक बार करके दिखाओ ना ग्रेस। ग्रे मैम एक बार बाइनरी टू ग्रे या ओनली बाइनरी? बाइनरी टू ग्रे। बाइनरी टू ग्रे, ओके। सो सपोज बाइनरी नंबर 0 1 0 1 0 ऐसा है, ठीक है। सो ये आपका MSB साइड है, या आपका LSB साइड है। सो ग्रे में क्या करना है, MSB एज इट इज लेना है, ठीक है। यहाँ पर साइड में XOR का टेबल लिखो, 0 0 0 1 1 0 1 1। जब भी सेम आता है तो 0 आता है, बाद में क्या आता है, 1 1 आता है, ठीक है। सो ये एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, ये 0 and 1 इन दोनों का XOR करना है। सो 0 1 का XOR क्या आता है, 1 1 1 0 का XOR क्या आता है, 1 1 0 1 का XOR क्या आता है, 1 and 1 0 का XOR क्या आता है, 1। समझ में आया? यस मैम। ओके, यस मैम। एनी क्वेश्चन अगेन? बाइनरी नंबर आपको लिखते ही आने चाहिए, हाँ? और किसी को कुछ डाउट? लास्ट 1 मिनट है, ठीक है। 120 को, सॉरी थर्ड फोर्थ जो भी लेक्चर ओपी का वो मैं लेने वाली हूँ। सो प्लीज कुछ डाउट होगा तो उसमें भी पूछो, अदरवाइज मैं सेकंड यूनिट स्टार्ट करूंगी, ठीक है।